Actually, it is a mixture of many chapters, that how a system, that is what we call as Congress system, ended. How the era of coalition came up, and then what were the, from there to the new economic policy, that is 1991, is Doran, what were the changes, and then एनडीए, जो कि एनडीए के आपके दो एरियाज थे. वन इज आपका 2014 वाला इलेक्शन है, एंड देन अगेन इन 2019 जो है एनडीए हैज स्वीप्ड अवे द लोकसभा इलेक्शंस. तो ये जो पूरा ट्रेंड है वहां से यहाँ तक का, वो सारा आपका जो है दैट इज अ रीसेंट वन. The very first we will be starting is with the end of the Congress system. हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में we have been reading it again and again that Congress was called as a system because Congress was not a political party. It was a way of working. It was a way of governing. So that is why perhaps उसका जो नाम है उसको हम लोग जो है what we call as Congress system. तो जो Congress system था that started somewhere in 45 46 मतलब कि near about the independence, and then it was there till 1990. आपका 1990 तक रहा, and that is आपका in between there for the, of course we had the problems, and then there were some problems आफ्टर 78, जो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था, दैट इज द मंडल कमीशन, आपका द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन. देन there were problems like Ayodhya dispute, which is one of the, you can say, key area, because अयोध्या की वजह से बीजेपी का जो नाम था that had come down. देन देयर वर अदर इश्यूज, नो डाउट आपके अभी पेपर से, अभी जो आपका बुक है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं लाइक पंजाब इश्यूज देयर, देन ये सारी चीज़ों को उन्होंने हटा दिया है, मतलब दे हैव बीन टेकन ऑफ. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस वी हैड द प्रॉब्लम फॉर पंजाब. पंजाब का जो था दैट वाज रिजॉल्व बाय दिस राजीव गांधी थ्रू द पंजाब अकॉर्ड. Then आपका Ayodhya dispute was there, which has not still been, I cannot say that it has been resolved, no doubt the temple is now being built, but जो actual में हुआ था उस दिन उसका we have not got. Then the changes in the Congress leadership, these all are the मतलब कि अब क्या है, we are having a new consensus. Now we are having a new development, we are having a new governance. So let us first of all come to the point, end of Congress system. What is, why it was ended? 1989. नाउ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास के अंदर वी हैव ऑलरेडी डन कि एक बार कांग्रेस जो है इट वाज 71 में देयर वर सम प्रॉब्लम्स, बट आफ्टर 71 द स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी जो है दैट हैड हेल्प्ड हर टू वीड आउट हर enemies, or you can say opponents. But after the implementation of emergency, 77 वाला जो period था that was not in favor of Congress, but once again Congress came it. क्यों आया था? क्योंकि जो आपके opposition से they were not having any clear cut policies, and that is why that era जो था it was
an era of coalition. But then in 1989, again, when the election was done, 1989, तो कांग्रेस जो था that was defeated. From 78 to 89 there was always a, मतलब कि बीच में बीजेपी आया था, then it had a midterm poll once it completed, but 89 में जो है उसके अंदर जो है that was, it had been defeated. और जो पार्टी उस वक्त में which had come into power, it got 415 seats in Lok Sabha. And the election जो था that was, मतलब 89 वाला जो election था that was called as the end to Congress system. And that we can even feel today. आज भी हम उस jolt को जो है feel कर सकते हैं. We can feel that the Congress मतलब कि आया था, मैंने जैसे आपको बताया 89 में जब बीजेपी आया था तो it was not that much powerful. And then there were issues of secularism, the issues of regional, religious, communal, जो आपका disharmony था. ये एक बहुत पहले से ये बात मानी जाती थी कि जो मतलब कि जो मतलब कि this particular party जो है, it is under the influence of RSS, so it may bring communal disharmony. And that was a witness in 1991 जब आपका midterm poll हुआ. Once again जो है कांग्रेस आ गया, लेकिन जो सिस्टम ऑफ कांग्रेस था ना दैट एंडेड. जो सिस्टम था वो खत्म हो गया. कांग्रेस आया लेकिन सिस्टम आपका जो है खत्म हो गया. नाउ दिस वन मोर आई सेड दैट व्हेन इन 78 आपका मंडल कमीशन जो है उसको बनाया गया था अंडर विश्वनाथ प्रताप सिंह. 1978 के अंदर जो है मंडल कमीशन वाज सेट अप. Now this Mandal Commission जो था that was a dispute which I had already discussed with you in the previous chapter about giving 27% to the OBCs. 27% to the OBCs. तो जो गवर्नमेंट उस वक्त आई थी उसने implement किया. It is still implemented, but again it witnessed a number of protests. आपके बुक के अंदर जो है फोटोज भी बनी होंगी. डीटीसी के जो बसेस थे उनको जला दिया गया था. मोस्ट ऑफ द ये जो आपकी वायलेंस था दैट वी कुड विटनेस इन द नॉर्दर्न स्टेट्स. अब आया आपका जो है कांग्रेस आया था. तो कांग्रेस जब आया तो दैट पीरियड इन द रियलिटी चेक, that period India was witnessing an economic reform, मतलब कि resurgence, you can say economic recession, and India had applied for a loan. उन्होंने जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है लोन अप्लाई कर रखा था. Unfortunately, World Bank and IMF जो थे, they refused to give us the loan. They said you need to completely liberalize your economy. उस वक्त Dr. Manmohan Singh was the finance minister for our country, and under Rajiv Gandhi, he introduced the new economic policy. जो आपके न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो आए, and that was called as LPG, that is liberalization, then privatization and globalization. These मतलब कि no doubt ये रिफॉर्म्स में ओवर में अगर हम देखते हैं 1990 से लेके अब के पीरियड को देखते हैं तो डेफिनेटली दीज रिफॉर्म्स हैव डेफिनेटली हेल्प्ड अस, लेकिन उस वक्त में दीज वर क्रिटिसाइज्ड. द एंट्री ऑफ MNCs was considered as an attack to the Indian producers. It was not इतना मतलब कि सबने आसानी से नहीं लिया था. तो सभी लोग जो थे क्रिटिसाइज तो कर रहे थे, लेकिन ऑन द अदर हैंड किसी ने भी इस पॉलिसीज को हटाया नहीं. इनफैक्ट इट वाज अडॉप्टेड anonymously but over a period. अब राजीव गांधी जी जो थे, बिकॉज देयर वर सम अदर डिस्प्यूट जो हमने पहले वाले में पढ़ा था, श्रीलंका का जो था, जब हमने अपने
पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे थे, बट दैट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल. And in Sri Lanka, many of the people, many of the movements, they believe कि Indians का intervention बहुत कम है. And that was one of the reason कि Rajiv Gandhi ji was attacked twice by Sri Lankans. Once when he had visited, and the second time he had lost his life. दूसरी बार तो उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई. And that period जो है हमारे लिए थोड़ा सा that was a jolt. बट उससे पहले हमारे साथ में हुआ था दो प्रॉब्लम्स. एक आपके इंदिरा गांधी जी की डेथ के समय, and second is the Ayodhya dispute, and I would be definitely discussing or telling both of them as a part of the politics because it is very important. ये पहले आपके चैप्टर्स में थे, अभी डिलीट कर रखा है. अयोध्या तो है लेकिन जो दूसरे वाला था वो नहीं है. But I would definitely say, see, when Indira Gandhi was there as a prime minister, 84 में उनकी मतलब कि she was assassinated. तो at that particular period, she had brought up many changes. लेकिन उस वक्त में एक politically एक problem हमारी arise हुई थी. The arise of Akali Dal under Longwal, and they all were demanding a separate Khalistan. तो खालिस्तानी जो मूवमेंट है, it is said that it was partially funded by Pakistan. I don't know the reality, but it is said that it is partially funded by Pakistan. And Pakistan मतलब कि, and it is also said that there is a small tunnel, एक छोटा सा टनल है जो कि आपके स्वर्ण मंदिर के नीचे से जाता है, which directly reaches Pakistan, क्योंकि that is a nearby. And the militants were supplied with the arms. So there were many theories for that, and ultimately Mrs. Gandhi Jyoti, she took a very what we call as strong step. उन्होंने जो है एक स्टार्ट किया, क्योंकि उन दिनों में आप दिल्ली से if you are going to पंजाब, तो ओनली एंड ओनली द मिलिटेंट्स न्यू कि आप जिंदा वापस आओगे या नहीं. नोबडी एल्स, किसी और को नहीं पता होगा कि आप जिंदा वापस आओगे या नहीं, क्योंकि जो यहाँ से बसेस जाती थी, बसेस को अबडक्ट कर लिया जाता था, मार दिया जाता था, लोगों को जला दिया जाता था. एंड इन पंजाब देयर वाज वायलेंस. एंड दैट इज वाई परहैप्स जो आपका एक पॉलिटिकली जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में द कंट्री वॉज नॉट एबल टू हैव द लॉ एंड ऑर्डर. तो दैट वॉज अ बैकड्रॉप, मतलब कि दैट इज समथिंग विच वी कैन से कि वो एक ब्लैक स्पॉट होता है. येट इंदिरा गांधी फॉट दैट विथ अल्टीमेट करेज. उन्होंने एक operation start kiya which was called as Blue Star operation, and under this Blue Star operation she had a direct attack on those people. लेकिन ये जो Blue Star मतलब की था, this was done in a normal cloth. सारे के सारे जो आपके कमांडोज थे, they were all placed in the normal clothes around स्वर्ण मंदिर, जहां उन्हें लग रहा था कि उस दिन मीटिंग होगी. It happened, the people were killed, और जो leaders थे they were killed. एक तरफ she had a strong position, तो दूसरी तरफ she also lost her position. But this was not seen as a good movement in politics. And उनके इस Blue Star का revenge जो है, that was taken by assassinating Srimati Indira Gandhi in her own residence by her own bodyguards. उनके दो बॉडीगार्ड थे जिनको पता था, एंड दे ऑल्सो न्यू कि उस पर्टिकुलर डे शी वॉज नॉट वियरिंग हर जैकेट. उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उस दिन नहीं पहना था, वो जबकि हमेशा पहनती थी. एंड आई थिंक पीपल से दैट शी न्यू दैट
because she had received the threats also. Okay, she had given this slogan in Odisha कि मतलब कि till I am alive, मेरा एक एक जो blood का कतरा है, that would be for my country. So it is said that she knew that particular day she wasn't wearing the bullet. She was assassinated. But उनका assassination is not a big scene रही हमारे यहाँ politics में उनका assassination is not the scene. The scene is after her assassination, the country witnessed a very, very ugly violence. और वो violence था between all the community and Sikh community और उनके जो बीच में जो था, that was a violence. And उसके अंदर I have witnessed that violence, so I can tell you it was the worst period of anyone's life. The Sardars were openly killed. Openly. They used to beg for their lives. उनको जो है जिंदा मतलब on the poles में बांधकर उनको जला दिया जाता था. That was the worst scenario. So that was one more development at that period. और इसी वजह से after the assassination of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi was at that period, he was living in Italy or something like that. He was called and he was given the prime ministership. और जब elections हुए तो वो जीत गए on sympathy vote. And during those period only आप कह सकते हो कि जो आपका new economic reforms था that came up. But again, it ended with his. उनका जो डेथ था उनके बाद जो है नरसिम्हा राव was there, but all these were not that much. वो जो leadership थी ना, change in the Congress leadership, that was very poor. Nobody was a stalwart who could drive. Rajiv Gandhi was not a politician. Personally, I really liked him. Personally, I was a fan of him. In fact, I can say. In fact, जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं सो रही थी और मेरे पापा ने दरवाजा जोर जोर से दरवाजा खटखटाया ना. I said कि what happened? And he said, रमा तुम्हारा राजीव गांधी मर गया, राजीव गांधी मर गया. I was personally, because I had seen many of the positive reforms at that period. Though he was not a politician, but whatever he did it in a very positive manner. But definitely we need leaders, not a humans. गवर्नमेंट चलाने के लिए हमें लीडर्स चाहिए होते हैं. तो उनकी डेथ के बाद वंस अगेन वो वैकेंसी रह गई. तब आपके जो है आया आपका द पीरियड व्हेन इंडिया विटनेस द सेकंड अगली वायलेंस, that is the demolition of Babri Masjid on 8 December 1992. आपके पेपर में क्वेश्चन वैसे 2 मार्क्स में आ सकता है. And it was said that it was a कर यात्रा, कर सेवा. And ये इसके अंडर क्या था कि under the leadership of L.K. Advani, there was a yatra which was taken from I think Gujarat and it reached Ayodhya. And वहाँ पर they wanted कि जो बाबरी मस्जिद है उसको हटा दिया जाए, because it is said that बाबरी मस्जिद is built on the area जहाँ पर राम भगवान पैदा हुए थे. Now see, after so many hundreds of years, ना ही राम भगवान आके बता सकते हैं ना ही बाबरी आके बता सकता है कि वहाँ हुआ क्या था. But it is said that जो बाबरी मस्जिद का जो इंटरनल वाला एरिया उसके अंदर से हमें जो है उन दिनों में मंदिर के अंदर जाना पड़ता था. सो जो बाबरी मस्जिद का तो मेन एरिया है दैट वाज बिल्ड बाय बाबर विच वाज अ मुस्लिम डोमिनेशन और अंदर हमारा मंदिर था. सो दे वांटेड कि वो जो ऊपर का मंदिर का जो ऊपर का जो डॉम था वो इन जो कर सेवक थे उन लोगों ने जाकर ऊपर चढ़कर उसे डिस्ट्रॉय किया, विच वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नाउ उस वक्त जो I think Chief Minister थे कल्याण सिंह, he was also summoned and it led to
the debate of Indian nationalism, secularism, and also politics of Hindutva. Many criticized again that was a period जब we witnessed a violence all around. भाई मुझे पता आई वॉज लिविंग इन दिलशाद कॉलोनी एंड हम अपने घर से बाहर नहीं जाते थे. घर के बाहर पुलिस वो जो आर्मी है वो मार्च करती थी और हमारे घर के एकदम सामने मुस्लिम्स रहते थे. एंड हमें ना वो बेचारे हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन हमें ना उनको देखकर डर लगता था बिकॉज दैट एवरी सेकेंड देयर वॉज अ वो कि यहाँ पर ये मारा गया वहां पर वो मारा गया. दैट वॉज रियली अ वेरी टफ पीरियड. सो दैट वॉज क्योंकि ऐसे अगर कोई भी वायलेंस होता है कोई भी चेंज होता है that would definitely lead to the development in the politics. Now, as I said, that in May 1991, Rajiv Gandhi was assassinated, and his assassination, उनका assassination कहाँ हुआ था? श्री पेरम्बत्तूर, Chennai, and he had gone for an election campaign in Tamil Nadu, जहां पर ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा उनको जो है ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा LTTE जो थे दे वर द वन जिन्होंने उनको जो है मार दिया था. मतलब देयर वाज अ ह्यूमन बॉम्ब. ह्यूमन बॉम्ब क्या होता है? जिसके अंदर जब वो यूज करते हैं तो जो इंसान होता है वो भी खुद भी मारा जाता है. So he was assassinated. His assassination got the sympathy for Congress. As I said that he was a very popular leader. वो बड़े मजाकिया टाइप के थे. And definitely he was not from the politics. मतलब इंदिरा गांधी के बेटे होते हुए भी he had been away. He did his schooling in this Doon school something. क्योंकि वो मेरे फादर के जो बॉस थे ध्रुव मोहन सहानी एंड अमिताभ बच्चन ये सब फ्रेंड्स थे तो इसीलिए थोड़ा पर्सनल भी जानती थी. देन ही वेंट टू इटली. वहां पर देन ही हैड द लाइसेंस फॉर ही वाज अ लाइसेंस पायलट and he was far away from the politics. Sanjay Gandhi was involved in politics. He was far away from the politics. So when he came back now, so he was the first person in India जो अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जाता था. एवरीवेयर सोनिया विल बी देयर अकम्पनी. बहुत मजाक बनता था. वो टाइम अच्छा था कि हमारे मेम्स नहीं थे. शायद सबसे ज्यादा मीम्स उन्हीं पे बनते. दैट वाज नॉट अ टाइम ऑफ मीम्स. सो मीम्स नहीं थे. At that period, just 1 minute. So he was the first. Then he was the one who used to visit other countries, foreign countries, to increase the foreign affairs. He was the one who introduced, in fact, invited Benazir Bhutto. And then whenever he would be going to the tour, तो he would sit on the normal dhabas and तो इसीलिए बहुत people popular थे. And that was the reason कि जब उनका assassination हुआ तो कांग्रेस जीत गई. कांग्रेस सिर्फ सिंपैथी वोट से जीती थी, not because of the policies. Now PV Narasimha Rao जो थे he became the prime minister after death. This ये जो सारा पीरियड था मतलब पहले आपका जो था कांग्रेस, देन अगेन आपका कोएलिशन वाला एरा, देन आपका थर्ड इलेक्टोरेट, देन अगेन क्लियर मेजॉरिटी आपका, एंड तब आपके जो है देन नेशनल फ्रंट दैट इज जनता दल के साथ आपके ऐसे करके जो है अलग अलग पार्टीज जो है आते रहे. बट एज आई सेड दैट assassination of Rajiv Gandhi was a sympathy vote but not a policy vote. So this era 1991 के बाद जो era था that witnessed another challenge, that is what to do. अब कांग्रेस को कोई हरा भी नहीं पा रहा था, at the same time कांग्रेस से कोई खुश भी नहीं था.
बिकॉज ऑल द अदर पार्टीज लाइक नेशनल फ्रंट है या फिर जो बाकी आपकी पार्टी से जनता दल वगैरह, दे डिड नॉट हैव अ क्लियर कट पॉलिसीज. दे केम अप ऑन इन दी मेन फ्रंट ऑल्सो, लेकिन दे ऑल हैड द ओनली कोएलिशन गवर्नमेंट था. एंड दूसरा क्या था, मिड टर्म पोल सब में हुए. नो मतलब कि जो आपका अगर कोई भी एक पार्टी विच इमर्ज एज अ चैलेंज टू कांग्रेस आपका बीजेपी, और वो था बाद में. तो उस वक्त तक 1991 तक era of coalition was there. The government used to come, they would be forming with coalition, but they could not stay for more than 2 or 3 years. So this, ये जो था मतलब कि जो 1990 वाला जो पीरियड था when Congress was there, but it was not that much liked, but it was a dominant one. उस वक्त में आपके जो है इंडिया के अंदर आया मल्टी पार्टी सिस्टम. एंड देयर वाज वन थिंग जिसको हम कहते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ अलायंस फॉर्मेशन. आपका एनडीए और आपका यूपीए, आपका नेशनल फ्रंट, दीज वर द थ्री what we call as political alliances. This was a period when the regional politics expanded. अब तक हमारा जो था, अगर आप कभी भी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, आपने देखा होगा मैंने कहीं पर भी रीजनल किसी भी ग्रुप के सिवाय सीपीआई के, आई हैवंट टेकन द नेम ऑफ एनी रीजनल ग्रुप. लाइक आपका एआईएडीएमके था, आपका शिवसेना था. These are all the one which have been. Then later on आपका एनसीपी आया, बट रीजनल पॉलिटिक्स जो था इस वक्त तक इतना नहीं था. मतलब उनका जो हिस्सा था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज लिमिटेड टू देयर ओन स्टेट्स. दैट डिड नॉट एंटर इनटू द मेन अरेना, दैट इज आपका व्हाट वी कॉल एज द नेशनल पॉलिटिक्स. एंड दिस वॉज अ पीरियड जब आपके अलायंसेस आए. एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम कहते हैं फेडरलाइज्ड. हम कहते हैं फेडरलाइज्ड. व्हाई डू वी कॉल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एज फेडरलाइज्ड? बिकॉज ऑन द टॉप जो भी आपका पार्टी था, पॉलिटिकल पार्टी होता था, दे हैड टू शेयर देयर वोट्स, they had to share their rights with those regional parties जो उनको support कर रहे थे. And that is why it is called as a federalized politics, not the federalized system of government. It is federalized politics. जहाँ federalism में हमारा क्या होता है, there are 2 or more levels. Each level के अपने अपने they are having their jurisdictions, but they share द जर्नी सेम. अब आपका पॉलिटिकल अलायंस वाला जो गवर्नमेंट जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था देयर वर 3 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंसेस. वी रेड दैट देयर वर 3 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंसेस. द वन ड्यूरिंग द फर्स्ट, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इलेक्शंस एंड इलेक्शन रिलेटेड पॉलिटिक्स. The second one was the participation of Dalits, emergence of political parties which represented the Dalits, and also those who formed the left front, United Front in 1996. और जो यूनाइटेड फ्रंट था इसको सपोर्ट किया था कांग्रेस ने. बट एक बहुत ही मतलब कि आयरॉनिकल है, एक पर्टिकुलर पीरियड में इसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था तो दूसरे पर्टिकुलर पीरियड में इसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था. बिटवीन 1989 एंड 1990 फॉर अ शॉर्ट पीरियड आपका नेशनल मतलब की जो फ्रंट था दैट वाज देयर, एंड इट वाज लेड बाय जनता दल under leadership of NT Rama Rao जो थे, he was also there. And then
यूनाइटेड फ्रंट जो था दैट फॉर्म विथ 13 पॉलिटिकल पार्टीज, जो आपका एक नेशनल फ्रंट था और दूसरा यूनाइटेड फ्रंट था. सो यूनाइटेड फ्रंट जो था दैट वाज फॉर्म विथ 13 पॉलिटिकल पार्टीज. बोथ आपका जो लेफ्ट फ्रंट है दैट इज आपका तृणमूल कांग्रेस एंड तृणमूल जो है वो, एंड बीजेपी जो था, यही मैं आपको अभी बता रही हूं, उन्होंने जो है नेशनल फ्रंट को सपोर्ट किया उस वक्त स्टार्टिंग में. व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू कीप अवे कांग्रेस आउट ऑफ द पावर. They supported National Front because they wanted to keep Congress out of the power. Then 1996 में लेफ्ट फ्रंट जो था इट सपोर्ट मतलब इट कंटिन्यू टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट विद कांग्रेस सपोर्ट टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर. मतलब आप सोच सकते हो कि एक टाइम लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी मिला था कांग्रेस को हटाने के लिए, और दूसरी बार लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस हटा था बीजेपी को हटाने के लिए. That was the ironical situation of that particular era. मतलब अब हमको क्या समझ आता है, that it was not the era of policies, but it was the era of keeping away the opponents. But once again, अब ऐसे वाले जो गवर्नमेंट होते हैं ना, मैं आपका इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको मतलब कि हटाना चाहती हूँ. That would never succeed. And in government, that too at the union level, it is immaturity. And that is why BJP जो थी 1991 and 1996 दोनों में जो है it emerged as the largest party. And because as I said कि BJP के लिए एक criticism था that BJP was more towards, it was non-secular, इसीलिए at times BJP was criticized. 1996 से 1999 तक, मई 1996 से आपके जून 1999 तक BJP was there, and then again it was re-elected in 1999, और तब आपका बना था NDA, National Democratic Alliance, under the Prime Ministership of Atal Bihari Vajpayee. And that is also called as one of the golden period of Indian politics. That's also called as a golden period of Indian politics because after 70s के बाद दिस एरा जो था दैट वाज, क्योंकि ड्यूरिंग दोज उससे पहले तो या तो आपके कोएलिशन था, गवर्नमेंट आता गवर्नमेंट गिर जाता, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राय आए, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, मतलब बहुत सारे लोग आए बट दे कुड नॉट सस्टेन. And since then there have been 9 governments at the center. Either they have been with the coalition or they have been with support of minority governments. National Front आपका 1989, United Front 1996 and 1997, then आपका NDA that is आपका 1997, 1999 and then 1999, and UPA Congress, it emerged in 2004 and 2009. आपका जब 1999 वाला इलेक्शन आया था उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी कुड नॉट विन because at that period BJP did not have a clear policy. उस वक्त का जो उनका जो हमारा मतलब की जो पॉलिटिक्स था that was more to keep away the opposition party, not to rule the government. Then जब आपका 2004 आया, 2004 से 14 का जो पीरियड था वहां तक कांग्रेस जो था that had a good, मतलब they had completed
This is because people were not supportive to BJP. That political जो आपका ये वाला जो period था, that was the main problem. Because at times Mandal Commission, then आपका अयोध्या, these all जो थे that came up. Now 2014 और आज तक, that is 2022, we are having what we call as NDA government. अब इस वाले में आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है न्यू कॉन्सेंसस. आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस? कंसेंसस मतलब एक मत हो जाना, एक मत हो जाना. During this period, people realized in the politics that if they want to remain in the power, coalition, participation of the Dalits, the minorities have to be taken care. मतलब ये जो चीजें हैं पहले accepted नहीं थी, लेकिन आपका मतलब कि फर्स्ट एग्रीमेंट था ऑन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको पहले लोगों ने क्रिटिसाइज किया था. व्हेन राजीव गांधी हैड इम्प्लीमेंटेड, एट दैट मोमेंट इट वाज क्रिटिसाइज, बट देन व्हाट हैपेंड इज दे स्टार्टेड adapting them and these policies became a common words for us. Second was the political and social acceptance of backward community. लाइक आपका BSP जो है वो फॉर्म हुआ था अंडर कांशीराम. देन इसको भी जो है मतलब रिजर्वेशन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी, देन उनके लिए एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट देना, that also. Now the political party also understood that if they want to be in power they have to now, in ये जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको अभी तक उन्होंने इग्नोर किया था, these have to be taken care. अब इनको जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन एक मूवमेंट होगा आपका जो है द गवर्नमेंट में फॉल डाउन. द थर्ड वॉज रीजनल पार्टीज. अब तक हमने फेडरल पॉलिटिक्स नहीं देखा था. द यूनियन वॉज यूनियन, द स्टेट वॉज स्टेट. But now the role of the state level parties in the government of country also came up. क्योंकि जो अभी हमारे जितने भी parties है ना, whatever you call them, they all have the support of one or the other state political parties. चाहे वो external support हो, चाहे वो वोट देकर support कर रहे हो. Then अब फोर्थ उनका जो था, दिस इज वन क्वेश्चन विच हैज कम इन द पेपर फॉर 5 मार्क्स. तो जो फोर्थ उनका था दैट वाज अ प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस, नॉट आइडियोलॉजिकल. मतलब अब जो कोएलिशन था, पहले कोएलिशन वाज ओनली बार्टर सिस्टम. पहले कोएलिशन वाज अ बार्टर सिस्टम, तुम मुझे वोट दो मैं तुमको ये सीट दूंगा, दैट वाज अ सिस्टम. बट लेटर ऑन नाउ दे वांटेड कि देयर शुड बी अ शेयरिंग ऑफ पावर्स. जैसे कि पहले आपके जो एनडीए है, दे डिड नॉट अग्री विद द हिंदुत्व पॉलिसी ऑफ बीजेपी. उनमें से ये अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं. एज आई सेड कि हिंदुत्व इज नॉट सीन एज एन आइडियोलॉजी, इट इज सीन एज अ थ्रेट टू सेक्युलरिज्म. क्योंकि हिंदुइज्म बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में होता है कि हिंदू लोग मुस्लिम पर मतलब कि रूल करेंगे, बट दैट इज नॉट देयर. बट येट let us not go to the depth of this. तो इसी बट स्टिल उन्होंने एग्री नहीं भी किया, देन ऑल्सो दे सपोर्टेड बीजेपी. मतलब अब आइडियोलॉजिकल था, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन 1 or 2 स्मॉल इश्यूज. एंड एज आई सेड 2004 का जो था दैट बिकेम द पावर फॉर यूपीए, दैट इज कांग्रेस. और जो 1996 था आपका एनडीए का आ गया था, दैट इज इन बीजेपी आपका लेड. And now we are having BJP 3 and 4 which can come in your exam. ये जो पहला क्वेश्चन मैंने किया है, emergence of new consensus, this comes in the paper, मतलब it has come. Now is UPA. As I said, UPA is the key for Congress. आपका 2004 था वो था. And जो आपके 2 elections थे 2004 और उसके बाद वाला, दोनों आपका कांग्रेस जो था वो था.
नाउ गवर्नमेंट ने एक चीज को दिया कि वाई जवाहरलाल नेहरू वॉज सो सक्सेसफुल, उनका उस वक्त में था, सो दे टुक दैट, उन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेकेंड टाइम जब वो आए, देन सोशल इक्विटी, इनको अपना एजेंडा बनाया. Till now, these agendas were lacking in their policies. It was more about keeping out the other political party out of power. It was not about the policies for the common people. So बहुत सारे women जो थे they became, मतलब उस यूपीए के जो सेकंड था, सेकंड वाला जो था 2004 से 2019 के, सॉरी 9 के बीच में, जो सेकंड वाला था 14 के बीच में, सेकंड वाले में 9 में many women were given key positions. They were given the positions in union territory, they were given the positions in states, in the highly populated area like Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal. And वो जो पहले हमारा था एक agrarian economy, then revitalizing the investment in agriculture, improving the rural infrastructure, इसको उन्होंने अपना एजेंडा बनाया, and they were in fact partially successful also. Now after this was the two, what we call as system, two types, UPA 1 and UPA 2. But in 2014, with the very, I can say, with the oratory skills and with the complete clear majority, with the clear policies, 2014 में NDA led by right now the Prime Minister Narendra Modi got an absolute majority in May 2014. And कहा जाता है कि 30 साल बाद, after 30 years, this was a strong government with an absolute majority. मतलब उनको तो किसी, वो एनडीए तो था लेकिन बीजेपी को ही क्लियर स्वीप मिल गया था. They did not need the support of any external political party or any alliance. Though it is called as NDA 3. क्यों हम उसको बुला रहे हैं? क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट तो उनके थे ही, वोट का सपोर्ट को जरूरत नहीं थी. वोट हम कब देते हैं? व्हेन दे आर लैगिंग इन वोट्स, जब उनको 2/3 वोट नहीं मिलता है, तो जो ये छोटे पार्टीज होती हैं, जो आपकी रीजनल पार्टीज होती हैं, वो अपने वोट को उनको देती है, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी. नाउ दिस गवर्नमेंट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट. दिस वॉज डोमिनेटेड बाय बीजेपी, एंड उसके लोकसभा में तो मेजोरिटी थी. एंड इन फैक्ट दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरप्लस मेजोरिटी कोएलिशन. क्या बोलते हैं हम इसको? सरप्लस मेजोरिटी कोएलिशन. दिस इज बिकॉज उनको कोएलिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी. एंड तब बीजेपी केम आउट with clear majority, with its biggest number, and now they have said that, social scientists का कहना है कि बीजेपी सिस्टम है ये. now they call it as a BJP system, not a, पहले क्या था? कांग्रेस सिस्टम. but now they say that it is a change of system from कांग्रेस to BJP system. अब जो हम काम कर रहे हैं, they are all under BJP system. Then once again in 2019, again the elections happened, and tab once again it got more than 350 seats. और अभी तक वही आपका जो गवर्नमेंट है वो चल रहा है. And the system, why? Because now the policies, the agendas, everything is according to the BJP. They have brought many changes which has actually worked out for the people. Like उनका एक पहला था, अच्छे दिन आएंगे was a slogan, और उनका जो गोल है वो है सबका साथ सबका विकास. Remember this, सबका साथ सबका विकास. और उन्होंने जो है कई पॉलिसीज बनाई हैं जिसके अंदर आपका प्रधानमंत्री
उज्जवल यूथ, देन आपका जनधन योजना जिसके अंदर आपके हर एक छोटे से बड़े सबके लिए जो है सेविंग्स बैंक खुले जाएंगे। द वेरी 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 पॉपुलर, जिस पर हमारे हर दूसरे दिन एक आर्टिकल आता है, स्वच्छ भारत अभियान। देन दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, दिस वाज इन फैक्ट पहले भी था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, more onto the focus of female against female infanticide. Then the very very famous startup India, वो भी उनका ही है, मेक इन इंडिया, और सबसे बड़ा जो उन्होंने ड्यूरिंग द पैंडमिक और उससे पहले दिया था वो था आपका आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर उन्होंने कई मेडिसिन को जो है दे हैव सब्सिडाइज्ड and they want that people should be benefited by each and every phase of this. Then rural household women, in fact I can say that this government is having many women ministers. Sushma Swaraj, who is no more, but she was there. Right now the finance minister, she is there, and they have succeeded in implementing all the programs, and caste, community, gender, इन सबको जो है they are taking to the center stage. So it is said that under BJP rule, सबका साथ सबका विकास, and that is a current trend. 2019 में आपका लास्ट इलेक्शन हुआ है. Now 5 years, अगर बीच में मिड टर्म नहीं होता है तो 2024 will see. But according to many political pundits, he is going to be there till 2024 तक तो बीजेपी रहेगा ही रहेगा. But once again the question comes कि अगर हम लोग if we look into the deep depth of this politics, more or less it is Modi charm. जैसे उस वक्त था जवाहरलाल नेहरू चार्म, ये आपका है मोदी चार्म. I remember 2 incidents. One is कि मैं ना वोट देने गई थी, एंड आई ऑलवेज, मतलब मेरा तो लिखा हुआ है, आई पुट ऑन नोटा ओनली, आई डोंट पुट ऑन एनी गवर्नमेंट. बट मेरे आगे ना एक अंकल थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा तुम किस में वोट डालोगी, तो मैंने उन्हें बोला कि बता अंकल अभी पता नहीं, बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू, वी आर नॉट सपोज टू. ही सेड मैं तो मोदी को वोट डालूंगा. तो आई सेड अंकल, मतलब ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड बेचारे. तो आई सेड अंकल वाई, मतलब आप मोदी को क्यों वोट डालोगे, यहाँ में मोदी थोड़ी खड़ा. तो ही सेड मतलब वहां पर आई सॉ पीपल केम टू वोट बिकॉज दे वर वोटिंग फॉर मोदी. दे डिड नॉट नो कि यहाँ पर, मतलब इस एरिया के अंदर हु इज अ नॉमिनेशन, वहां नॉमिनी कौन है. सेकेंडली, इन साउथ मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट द पार्टीज. मेरे फादर इन लॉ वाज वेरी ही यूज्ड टू डिस्कस एट लेंथ, मतलब बाकी चीजों में तो वो मुझे वहां रखते थे, कोने पे बैठी रहो. बट पॉलिटिक्स में ना उनको मेरे से बात करने में बहुत मजा आता था, because he knew that I'm also very much interested in politics. उनको पता था कि मेरा था politics also my subject. तो he used to tell about that कि वहाँ पर कैसा रहता. तो मैंने हमेशा उनको, मेरे मामा जी अगर को देखा था कि for them उनका जो they were only bothered about DMK में करुणानिधि ऐसा है, स्टालिन ऐसा है, या फिर जयललिता ऐसा. बट I saw in 2019 my uncle said I will vote for Modi, and touch wood, I, मतलब कि मुझे ना अंदर से हंसी आ रही थी, because he wasn't able to spell out Modi. He was saying, but I could see that Modi had reached south. उनका वो जो चार्म था ना वो साउथ जा चुका था. So this shows कि हो सकता है कि ये जो पीरियड है, once again it is about what we call as Modi charm. और हो सकता है later on if something happens, so that may be like what happened after, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में क्या हुआ था. That should not be the politics. बीजेपी इस वक्त में it is under great policies.
yet we can say that it is a system now. It is a system now. It is not now a government, it is a system now. जैसे पहले कांग्रेस आपका जो है वो आपका एक सिस्टम था, तो अब बीजेपी हैज बिकम अ सिस्टम, राइट? सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट हम लोगों को जो लास्ट के हमने 3-4 चैप्टर्स पढ़े ना बेटा, यू ऑल हैव टू कोरिलेट ऑल दोज चैप्टर्स टुगेदर. You all have to correlate all those chapters together. ये सारे के सारे चैप्टर्स, मतलब जहाँ आपका पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज वाला सिस्टम कि हाउ व्हाट लेड टू द राइज ऑफ कांग्रेस, देन आपका जो है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, एंड देन आपका जो ये वाला जो सिस्टम है, ये सारा आपका जो है साथ में जाएगा. सो thus I can say that this is the recent political trends. With this, I think your syllabus will also be over, but I'll send the question answers to you. जो आपको मैंने important बताया है वो तो आप लोगों ने learn करना ही है. I'll send some more questions to you.